Namaste students, welcome back to my channel. Students, is learning a chemical reaction is difficult for you? Chemical reaction learn करने में आपको difficulty होती है, but in chemistry you have to learn the chemical reaction. Today in our topic that is the potassium permanganate. Today our topic is potassium permanganate and potassium permanganate is very strong oxidizing agent in each medium, acidic, basic and alkaline. So you have to learn a number of reactions. आपने बहुत सारी reactions learn करनी पड़ती है potassium permanganate की oxidizing property को show करने के लिए. So today in this video I'll tell you a trick with the help of which there is no need to learn the reaction. There is no need to learn the reaction. If you नो दैट ट्रिक, अगर आप उस ट्रिक को पढ़ लेंगे, अगर आप उस ट्रिक का पता कर लेंगे तो आपको रिएक्शंस को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Potassium permanganate. Potassium permanganate having formula KMnO4. Potassium permanganate having formula KMnO4. It is an ionic compound. When it dissociates in water, it gives K positive and MnO4 negative ion. This MnO4 negative ion is permanganate ion. This MnO4 negative ion is permanganate ion, and the structure of this permanganate ion is double bond O, double bond O, double bond O, O negative. Double bond O, double bond O, double bond O, O negative, or you can write it as, here it is O negative, and if we talk about the oxidation state, then the oxidation state of Mn is +7. Why it is +7? Because how many electrons are shared by manganese? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and with the oxygen, and because oxygen is more electronegative, that's why its oxidation state is +7. So जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक आयनिक कंपाउंड है जो कि डिसोशिएट होके K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव देता है. This MnO4 negative is permanganate ion जिसका ये स्ट्रक्चर होता है, and if we use the trick, so उस ट्रिक के हेल्प से हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. Now we'll talk about the preparation of the potassium permanganate. So we'll talk about the preparation of potassium permanganate. Now potassium permanganate is prepared by an ore, and the name of that ore is pyrolusite. Pyrolusite having formula MnO2. So this potassium permanganate is prepared from an ore, pyrolusite, and from pyrolusite it is prepared in two steps. So the first step is the conversion of pyrolusite into potassium manganate. Clear? पोटेशियम परमैंगनेट को हम पायरोलुसाइट से प्रिपेयर करते हैं 2 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पायरोलुसाइट, कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइट इनटू पोटेशियम मैग्नेट, यानी हम पायरोलुसाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे? पोटेशियम मैग्नेट में. क्लियर? इसमें हम क्या करते हैं? द ओर इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर. Why converted into fine powder? To increase the rate of the reaction. सबसे पहले हम इस ओर को किस में कन्वर्ट करेंगे? फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने का रीजन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी फास्ट हो. देन दैट फाइनली पाउडर्ड ओर इज फ्यूज्ड विथ, यानी उसको हम मिक्स्ड करेंगे. दैट फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विथ ईदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट. उसको हम फ्यूज करेंगे या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट.
जो हम रिएक्शन करेंगे या तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे यानी एयर की प्रेजेंस में करेंगे, या फिर हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्लोरेट. So if I write in one line what I have to do in this, so the powdered ore is fused with KOH oblique K2CO3, means या तो KOH के साथ या फिर K2CO3 के साथ, in the presence of air means oxygen or oxidizing agents. किसकी प्रेजेंस में, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में. देन आफ्टर डूइंग दिस वी गेट अ ग्रीन कलर पोटेशियम मैग्नेट. So if I write the reaction, this is MnO2. When this MnO2 is treated with KOH, first KOH के साथ reaction show करते हैं in the presence of O2. Then I get here K2MnO4 plus H2O. This K2MnO4 is potassium मैग्नेट. या फिर MnO2 reacts with K2CO3 in the presence of air. I get K2MnO4 plus CO2. K2MnO4 plus CO2. Or this MnO2 reacts with KOH. Now I'll take the oxidizing agent. अब मैं oxidizing agent लूंगी. Suppose potassium nitrate, that is KNO3. It gives K2MnO4 plus KNO2 plus H2O. Clear? So in this way, the powdered ore, जो हमारा powdered ore है, उस powdered ore को हम क्या करेंगे, किसके साथ react करेंगे? Either with KOH or K2CO3, either in the presence of air or in the presence of oxidizing agent like KNO3, KClO3, etc. Clear? This is our first step. ये हमारा कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है. नाउ इन दिस स्टेप, दिस K2MnO4, इस स्टेप में जो हमारा K2MnO4 बनता है, दैट इज पोटेशियम मैग्नेट. This potassium magnet undergoes disproportionation reaction in acidic or neutral medium if kept for a long time. अगर इसको as it is रहने दे, यानी अगर हम सेकेंड स्टेप को as soon as परफॉर्म ना करें, तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन शो कर देगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिस K2MnO4 means MnO4 2 नेगेटिव. ये अगर मैं आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव प्लस MnO4 2 नेगेटिव. MnO4 2 नेगेटिव H पॉजिटिव gives MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस H2. क्लियर? मीन्स अगर मैंने सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड स्टेप मेरा, I have told you that I'll prepare potassium permanganate from pyrolusite in 2 steps. मैंने 2 स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म करनी है. This is my first step, that is the conversion of pyrolusite into potassium magnate. उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप परफॉर्म करना है. But if I take टाइम टू परफॉर्म द सेकेंड स्टेप, अगर मैं सेकेंड स्टेप को परफॉर्म करने के लिए टाइम लेती हूँ, दिस पोटेशियम परमैंगनेट अंडरगोस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मीन्स अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन. तो यहाँ पे ये जो MnO4 2 नेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. Clear? So this is a disproportionation reaction. Now the second step is oxidation of potassium manganate into potassium
परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। यानी सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैंगनेट में। नाउ दिस ऑक्सीडेशन आई कैन डू बाय टू मेथड्स, यानी ये जो ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीडेशन मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। फर्स्ट इज केमिकल ऑक्सीडेशन, पहला तो मेरा क्या है, केमिकल ऑक्सीडेशन। फर्स्ट इज केमिकल ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन। नाउ इन केमिकल ऑक्सीडेशन ये जो फ्यूज मास, यानी यहाँ पे जो ये मुझे मास मिला है, इस मास को मैं क्या करूंगी, दिस मास इज एक्सट्रैक्टेड विद द वाटर and then the solution, the solution is filtered and then the filtrate, मतलब पहले मैं इसको क्या करूंगी, वाटर के साथ डिसॉल्व कर लूंगी, फिर फिल्टर करूंगी, और जो फिल्ट्रेट मुझे मिलेगा आई ट्रीट दैट फिल्ट्रेट ईदर विद द क्लोरीन और विद द कार्बन डाइऑक्साइड और विद द ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सट्रैक्ट दिस मास, यानी मुझे यहां से जो मिला है मैं इसको किसके साथ एक्सट्रैक्ट करूंगी, विद वाटर। देन आई फिल्टर द सॉल्यूशन, जो फिल्ट्रेट मुझे मिलेगा आई ट्रीट दैट फिल्ट्रेट ईदर विद द कार्बन डाइऑक्साइड और विद क्लोरीन और विद ओजोनाइड ऑक्सीजन। सो हियर दिस K2MnO4, this K2MnO4 when reacts with carbon dioxide, जब K2MnO4 की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देन आई गेट KMnO4, along with KMnO4 I get MnO2 and K2CO3. Clear? When I react this K2MnO4 with Cl2, then I get KMnO4 plus KCl. And when I react this K2MnO4 with ozonide oxygen, then I get KMnO4, then I get KMnO4 plus KOH plus O2. So these are three reactions of chemical oxidation. ये तीन reactions है chemical oxidation के साथ, CO2, Cl2 और ozonide oxygen. Clear? नाउ इसमें से जो ये वाली स्टेप है, द फर्स्ट रिएक्शन, दिस फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर ये इकोनॉमिकली देखी जाए तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज इन दिस 1/3 ऑफ K2MnO4, जो 1/3 होता है K2MnO4 का, वो वापस MnO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर? इन फर्स्ट स्टेप वी आर कन्वर्टिंग MnO2 इनटू K2MnO4। हम फर्स्ट स्टेप में MnO2 को K2MnO4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड इन सेकंड स्टेप वी आर गेटिंग अगेन MnO2, हमें 1/3 पार्ट अगेन MnO2 मिल रहा है। सो दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस, सो द फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट इकोनॉमिकली यूजफुल फॉर अस। सो नाउ द क्वेश्चन इज, करते क्यों है फिर? अगर यूजफुल नहीं है तो फिर हम रिएक्शन परफॉर्म क्यों करते हैं? बिकॉज हेयर वी गेट K2CO3 ऑल्सो, यहाँ पे हमें K2CO3 भी मिलता है, और K2CO3 हम कहाँ यूज कर लेते हैं, इन दिस स्टेप। क्लियर? सो दिस रिएक्शन हैज पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट है इसके। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, दैट वी गेट K2CO3 जो हम फर्स्ट स्टेप में यूज कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि 1/3 ऑफ K2MnO4 जो है वो KMnO4 में कन्वर्ट नहीं होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में। यानी सिर्फ 2/3 आपका किस में कन्वर्ट होता है, KMnO4 में। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। सो नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस जब हम परफॉर्म करेंगे, दिस K2MnO4 on passing electricity get converted into K positive and MnO4 2 negative. This MnO4 2 negative will go to एनोड और K पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड। बट दिस इज आवर एक्वस सॉल्यूशन, वाटर भी तो है यहाँ पे, वाटर भी है, वाटर है, सो ऑब्वियस सी बात है वाटर भी आपका डिसोशिएट होगी, क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इट मीन्स वी हैव 2 anion इन एनोड एंड 2 cation इन कैथोड। हमारे पास 2 anion एनोड में है और 2 anion कैथोड में
and we have studied in the electrochemistry that if we have more than one ion in any electrode, then which ion will discharge, it depends upon the discharge potential of that particular ion. हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एनोड या कैथोड पे मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन एनायन है, तो कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन डिस्चार्ज होगा उस पर्टिकुलर कैथोड और एनोड पे, ये उनका रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल फिक्स करेगा. नाउ आउट ऑफ दीज टू एनायन MnO4 2 नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है. सो एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? MnO4 2 नेगेटिव. एंड आउट ऑफ दीज टू आयन H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो H पॉजिटिव कहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा? कैथोड पे. सो एनोड पे मुझे क्या मिलेगा? एट एनोड आई गेट MnO4 2 नेगेटिव, इट गिव्स MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेगा, H में कन्वर्ट होगा और दो H मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 में. इट मींस कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होगा और एनोड पे हमें MnO4 नेगेटिव मिलेगा. बट दीज टू, विच टू? K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हमारे कहाँ रहेंगे? सॉल्यूशन में. K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव सॉल्यूशन में रहेंगे एंड MnO4 नेगेटिव भी रहेगा. क्लियर और नॉट? When we pass electricity, this K2MnO4 dissociate into K positive and MnO4 2 negative. इसमें dissociate हो जाएगा, MnO4 2 negative जाएगा एनोड की तरफ और K positive जाएगा कैथोड की तरफ. क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है तो वो भी dissociate होगा, उससे भी हमें कैटायन और एनायन मिलेगा. कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाएगा एनोड की तरफ. नाउ कौन सा एनायन और कौन सा कैटायन आपका डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करेगा उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे. MnO4 2 negative discharge potential is less than that of OH negative. So MnO4 2 negative discharge होके MnO4 negative बन जाएगा. यानी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होने से पहले MnO4 2 negative था. Now we have MnO4 negative. Here hydrogen H positive take electron and get converted into hydrogen atom and two hydrogen atom combine to form hydrogen gas. So hydrogen gas evolve हो जाएगी at cathode. हमारे पास सॉल्यूशन पे क्या बचेगा? MnO4 नेगेटिव, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन बचेगा आफ्टर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी जब कंप्लीट हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी और हमारे पास सॉल्यूशन में थ्री थिंग्स होंगी, दैट इज MnO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड K पॉजिटिव. देन दिस सॉल्यूशन इज हीटेड एंड कूल्ड अंडर सुटेबल कंडीशन. इसको हम क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे एंड कूल करेंगे अंडर सुटेबल कंडीशन और उसमें हमें क्या मिलेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल एंड देन वी गेट द पोटेशियम परमैंगनेट. सो आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू? After the complete oxidation, we'll evaporate the solution under controlled condition, and after cooling that evaporated portion, we get the crystals of potassium permanganate. So या तो हम इस फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इस फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is the preparation of the potassium permanganate with the help of the pyrolusite ore. Just go through these reactions, note down these reactions, very important reactions, and after this we are going to study the properties of potassium permanganate. I hope preparation is clear to you. Preparation आपको समझ में आ गई होगी. Now we move towards the properties of potassium permanganate. So we move towards the properties. Now the very first property is the color. First property is color. The color of potassium permanganate. The color of potassium permanganate is deep purple, black, prism-shaped crystals. Prism-shaped crystals. मीन्स हमें क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेंगे और क्रिस्टल के फॉर्म में उनका कलर कैसा होगा? डीप पर्पल ब्लैक. मीन्स पर्पल और ब्लैकिश भी लगेगा. सो डीप पर्पल प्रिज्म शेप क्रिस्टल्स होंगे हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के. सेकेंड, solubility. Second is solubility.
नाउ द सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो जस्ट एज लाइक द पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था. In potassium dichromate, we studied that potassium dichromate is slightly soluble in cold water but highly soluble in hot water. उसी की तरह जो पोटेशियम परमैंगनेट है हमारा, वो कोल्ड वाटर में कम डिजोल्व होगा, कम सॉल्युबल होगा, और पोटेशियम हॉट वाटर में आपका क्या होगा, ज्यादा डिजोल्व होगा. सो स्लाइटली soluble in cold water but highly soluble in hot water. Highly soluble in hot water. Clear? This is our next property. Now the third property is on heating. It decomposes to evolve oxygen gas, just as like of the potassium dichromate. जब हम इसको हीट करते हैं 513 Kelvin, after 513 Kelvin it decomposes to liberate oxygen gas. Means KMnO4 on heating gives K2MnO4 plus MnO2 plus O2. What is this? This is potassium manganate. And if we heat potassium manganate, if we further heat potassium manganate, this potassium manganate undergoes further decomposition to form K2MnO3 along with O2. And this is potassium manganite. क्लियर? अगर हम इसको 513 पे हीट करते हैं तो ये किसमें डिकम्पोज हो जाता है, पोटेशियम मैंगनेट, एंड क्या इवॉल्व करता है, O2 गैस. लेकिन अगर हम इसको फर्दर हीटिंग करेंगे यानी स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे, दिस पोटेशियम परमैंगनेट ऑल्सो अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू गिव पोटेशियम मैग्नाइट एंड O2. यानी on strong heating we get potassium magnate, on little heating we get potassium manganate. Clear? Now the fourth property, very important property, fourth property of potassium permanganate, very important, that is the oxidizing property. Means this KMnO4 acts as an oxidizing agent. In K2Cr2O7 we studied that K2Cr2O7 acts as an oxidizing agent in the acidic medium. जो K2Cr2O7 है वो एसिडिक मीडियम में क्या शो करता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है. बट दिस KMnO4 shows its oxidizing property in neutral medium, in alkaline medium as well as in acidic medium. Means किसी भी मीडियम में आप ले लो, आपके जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा. ठीक है, मैं यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिखूंगी जो रिएक्शंस इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस को हाफ सॉल्व कर देगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज दोस 3 रिएक्शंस? दिस KMnO4, ये जो KMnO4 है, दिस KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इफ आई हैव एसिडिक मीडियम, अगर मैं रिएक्शन एसिडिक मीडियम में परफॉर्म कर रही हूँ, सो दिस KMnO4 when reacts in the acidic medium it gives Mn2 positive. ये क्या देगा? Mn2 positive. When we have neutral or basic medium, then we have get MnO2. And when we have strong basic medium, then we get K2MnO4. फर्स्ट तो आप लोगों ने एक तो ये चीज अपने माइंड पर रखनी है, दैट दिस KMnO4 ऑन एसिडिक मीडियम गिव्स Mn2 पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम MnO2, और जब स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा मींस व्हेन वी हैव pH 12, 13, 14 देन इट गिव्स K2MnO4. क्लियर? नाउ
here the oxidation state, if I calculate the oxidation state of manganese here, it is 1 plus x minus 8 0, so x equals to plus 7. Here the oxidation state is plus 7, here the oxidation state is plus 2, oxidation state is plus 2. Now while moving from here to here, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे मैं इसका इक्विवेलेंट वेट बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ. इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कैसे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस. तो यहाँ पे तो गेन हो रहा है, तो गेन बाय एटम दैट आर 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5. तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगी? इसका इक्विवेलेंट वेट. क्लियर? नाउ इन न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस Mn, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं x minus 4 equals to 0, so x equals to plus 4, so the oxidation state is plus 4. ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा क्या है? plus 4 है. plus 4 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ plus 7 to plus 4, जब हमारा plus 7 to plus 4 जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. सो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3. मींस देखिए, अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट भी चेंज होता जा रहा है. दिस थिंग कीप इन योर माइंड. क्लियर? लेकिन ये याद नहीं करना यहाँ पे 5 लेना है, यहाँ पे 3 लेना है. सिंपली फ्रॉम द रिएक्शन यू गेट टू नो. यहाँ पे वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 5 आ गया. Here this substance is gaining 3 electrons, so that's why here it is 3. Now here KMnO4, K2MnO4, if I calculate the oxidation state here, 2 plus x minus 8 0, so x equals to plus 6. So the oxidation state is plus 6. So plus 7 to plus 6 means gain of only 1 electron. So the equivalent weight is equals to molecular weight divided by 1. It means in this case equivalent weight is equals to the molecular weight. यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट है वो किसके इक्वल है? हमारे मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल है. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट. क्लियर? It means ये 3 reactions, these 3 reactions, बेटा these 3 reactions are highly important reactions for the oxidizing property. ये जो 3 reactions हैं, अगर ये reaction आपके mind में है तो आप easily किसी भी reaction को लिख सकते हो KMnO4 में. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर KMnO4 शो कर रहा है तो आप इसकी हेल्प से किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हो. नाउ वी विल सी द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी KMnO4 in acidic medium, in neutral medium and in basic medium separately. So now you have to keep these thing in your mind. बेटा आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है बस, that in neutral medium if we have H2S तो KMnO4 क्या करेगा? KMnO4 H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा? S में. थायोसल्फेट आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा? सल्फेट आयन में. बेसिक मीडियम में आयोडीन नेगेटिव यानी आयोडीन आयन को आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, ब्रोमीन को ब्रोमेट आयन में कन्वर्ट कर देगा. सो इन दिस वे ये आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो रिएक्टेंट को कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है. एंड इफ यू नो दिस थिंग आप इजीली रिएक्शन को लिख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसकी बात करें? न्यूट्रल मीडियम की. न्यूट्रल मीडियम. नाउ न्यूट्रल मीडियम में इससे पहले हम लोगों ने देखा था व्हेन वी हैव MnO4 नेगेटिव एंड इट इज अ न्यूट्रल मीडियम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2. ये हमने देखा था. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस दिस रिएक्शन. हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. रिएक्शन बैलेंस करेंगे. नाउ आई गिव यू अ ट्रिक हेयर जिससे आप रिएक्शन को बहुत आसानी से बैलेंस कर लेंगे न्यूट्रल एंड द बेसिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में हमने क्या कहा था? फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन वी यूज वाटर. यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ही यूज करेंगे. बट इन एसिडिक मीडियम मैंने आप लोगों से कहा था यू हैव टू ऐड वाटर इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड. ठीक है. आपने क्या करना है? वाटर को उस साइड ऐड करना है जिस साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है.
ऑब्वियस सी बात है, तभी हम बैलेंस कर पाएंगे। ऑक्सीजन जहां कम है वहां हम क्या ऐड कर देंगे, H2O। बट इन न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम यू हैव टू ऐड वाटर in that side where we have excess of oxygen, where we have more oxygen. क्लियर? हमने अल्कलाइन और बेसिक मीडियम में H2O कहाँ ऐड करना है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, और जितने ज्यादा ऑक्सीजन है उतना ही हमने क्या ऐड करना है, H2O ऐड करना है। And in acidic medium I told you to balance you have to add H positive ion. यहाँ पे आपने इन न्यूट्रल एंड एसिडिक बेसिक मीडियम यू हैव टू ऐड OH नेगेटिव आयन, और वो OH नेगेटिव आयन जो आप ऐड करेंगे, जितने आपने H2O ऐड किए हैं उसकी अपोजिट साइड में उसके डबल आप क्या ऐड कर देंगे, OH नेगेटिव आयन। क्लियर? सो इन एसिड फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन यू हैव टू ऐड वाटर, in base you for balancing oxygen you have to add water, but in acidic आपने क्या करना है, जिस साइड ऑक्सीजन कम है वहां वाटर ऐड करना है, लेकिन बेस और न्यूट्रल में जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है वहां वाटर ऐड करना है। क्लियर? सो हेयर आई हैव 4 ऑक्सीजन, हेयर आई हैव 2 ऑक्सीजन, तो मेरे पास यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है, एंड कितने ज्यादा है, आई हैव 2 मोर ऑक्सीजन, सो आई ऐड 2 H2O है। ठीक है? अगर यही मैं एसिडिक मीडियम में कर रही होती सो आई ऐड 2 H2O है, मैं यहाँ पे 2 H2O ऐड करती। क्लियर? नाउ बिकॉज आई हैव एडेड 2 H2O है, तो आई ऐड 4 OH नेगेटिव है, मैं यहाँ पे 4 OH नेगेटिव ऐड कर दूंगी। क्लियर? सो नाउ लुक द रिएक्शन, Mn1 ऑक्सीजन हेयर 6, ऑक्सीजन हेयर 6, हाइड्रोजन हेयर 4, हाइड्रोजन हेयर 4, बैलेंस्ड। क्लियर? Now I'll balance the charge. Here I have 1 negative charge. Here I have 4 negative charge. So 3 electron. चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस करूंगी। So अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है that in acidic medium हम क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे। In acidic medium, in basic medium, in neutral medium, if you have to balance oxygen, H2. If you have to balance hydrogen, H positive and OH negative. If you have to balance charge, electron. बट सिंपली आपने क्या ध्यान में रखना है, इन एसिडिक जहां कम है ऑक्सीजन वहां H2O ऐड होगा, इन बेसिक एंड न्यूट्रल जहां ज्यादा है ऑक्सीजन वहां वाटर ऐड होगा, उसका जस्ट डबल OH नेगेटिव अपोजिट साइड में ऐड हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज माय रिएक्शन फॉर न्यूट्रल एज वेल एज फॉर बेसिक मीडियम। क्लियर? अब मैं इसको बैलेंस करती हूँ, मीन्स इन दोनों की रिएक्शन लिखती हूँ कि ये जब इसको कन्वर्ट करेगा तो रिएक्शन कैसे बनेगी। H2S gives S. Clear? Now first of all I have to balance this reaction. अब यहाँ पे भाई ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन ही है, तो मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगी, एंड फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन मैंने क्या करना होगा, OH नेगेटिव ऐड करना होगा, प्लस 2 OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव। अब ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगी, 2 H2O, और 2 H2O का जस्ट डबल मैं क्या ऐड कर दूंगी, यहाँ ऐड कर दूंगी। क्लियर? पहले मैंने क्या बैलेंस किया, हाइड्रोजन, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं था, एंड फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन आई हैव टू ऐड OH नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे, सो आई हैव एडेड 2 हाइड्रोजन हेयर, लेकिन ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगेन द सेम ट्रिक, जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है वही मैंने वाटर ऐड करना है, सो आई हैव एडेड 2 वाटर है, सो 2 वाटर तो 4 OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव, नाउ दोनों साइड OH नेगेटिव हो गए, सो H2S प्लस 2 OH नेगेटिव गिव्स S प्लस 2 H2O। क्लियर? नाउ सल्फर 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस। Now if I balance the charge, here I have -2, here I have 0, so I'll add 2 electron. Now I have 2 balanced equation. अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या करूंगी, इक्वल। Here I multiply this equation by 2, here I multiply this equation by 3, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। So यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 3H2S। Now here I have 4 H2O, यहाँ पे मेरे पास 4 H2O है, और यहाँ पे मेरे पास 6 H2O होंगे, तो 6 H2O 4 H2O, ये 4 वहां से ले जाएगा, इट बिकम्स 2 H2O, तो मैं यहाँ H2O नहीं लिखूंगी। Here I have 6 OH नेगेटिव,
एंड हेयर आई हैव 8 OH नेगेटिव, सो 6 भी वहां चले जाएगा, यानी ना इस साइड H2O आएगा ना यहाँ OH नेगेटिव आएगा। क्लियर? नाउ अब प्रोडक्ट साइड में आपका क्या आ जाएगा, 2MnO2 प्लस 3 सल्फर प्लस हेयर 6H2O and here 4H2O, 6 plus 4, 6 minus 4 sorry, 2H2O plus here 6 OH negative, here 8 OH negative, so 2 OH negative. Clear? Now look the reaction. How many manganese? 2. How many sulfur? 3. How many oxygen? Here 8, here 2 to the 4, 5, 6, 7, 8. Balance. Hydrogen 6, 2 to the 4, 6. Balanced. Charge -2, -2. Balance. Balanced chemical equation. Now ये तो हमारी आयनिक इक्वेशन है। अगर आपने इसको नॉन आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सिंपली राइट हियर 2KMnO4 प्लस 3H2S gives 2MnO2 plus 3S plus 2H2O. Now OH नेगेटिव के साथ क्या आएगा? Here we have K और यहाँ अभी तक K नहीं आया है, so I get 2KOH. क्लियर? बाकी सब चीज बैलेंस थी, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो आप बहुत इजीली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो इफ यू नो दीज रिएक्शंस एंड इफ यू नो दिस रिएक्शन. क्लियर? एंड ये रिएक्शन में आपको लर्न नहीं करनी है, सिंपली यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इन अल्कलाइन मीडियम दिस MnO4 नेगेटिव गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 और इन बेसिक मीडियम. Basic medium. Clear? Clear? Now solve this by your own. Clear? Now we will do one equation of the basic medium. In basic medium also the reaction is same. Basic medium में भी ये reaction रहेगी. अब basic medium की equation ले लेते हैं. That I negative gives IO3 negative. अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है and because it is basic medium so I'll add water where I have already more oxygen, so 3H2O, and because I have added 3H2O here so I add 6OH negative. I add 6OH negative. Clear? How many hydrogen? 6. How many oxygen? 6. Balanced. Now charge here -7, here -1. यहाँ -7 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 electrons. Clear? Here I have 3 electrons. Here I have 6 electrons. मेरे पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? बाय 2. I multiply this by 2 and the reaction I get is 2MnO4 negative plus I negative. Now here 4H2O, here 4H2O and here 3H2O. So 4, ये 3 यहाँ आएगा, so I'll write plus H2O. Here I have 6OH negative, here I have 8OH negative. So 6OH negative वहां जाएगा, so OH negative यहाँ नहीं लिखेंगे. Then gives 2MnO2 plus IO3 negative plus here 8OH negative, here 6OH negative, so 2OH negative. Clear? If I see the reaction, manganese 2, iodine 1, oxygen 8, 9, here oxygen 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clear? Hydrogen here 2 and here hydrogen 2. Balance. Charge here 3, here also 3. The reaction is balanced beta. बहुत easy है reaction लिखना. No need to learn the reaction. Reaction learn करने की जरूरत नहीं है आपको. Clear? And if I write the non-ionic equation, I'll write 2KMnO4 plus here I'll write Ki plus H2O, 2MnO2 plus KiO3 plus 2KOH. Now यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है because we are adding potassium. तो potassium यहाँ पे बैलेंस है या नहीं है ये हमने देखना है. So here I have 3 potassium and here also I have 3 potassium, so the reaction is balanced. Clear? So very easy way बेटा
बेटा बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो. नाउ वी सॉल्व वन रिएक्शन ऑफ द एसिडिक मीडियम आल्सो. Okay, first of all, I write the reaction of the acidic medium. In acidic medium, MnO4 negative converted into Mn2 positive. So first of all, I balance this equation. मैं इस equation को balance करूँगी. So here 4 oxygen means because it is acidic medium, तो मैं उस side water add करूँगी जहाँ oxygen deficient है. So here 4H2O. Clear? Now I have to balance hydrogen, and for balancing hydrogen I'll add H positive. Here I add 8H positive. Balanced. Now charge plus 8 minus 1 plus 7. Here it is plus 2. Here it is plus 7. Here it is plus 2. So here I add 5 electron. So it becomes plus 2. Balanced. Now I'll take this equation that SO2 gives H2SO4. SO2 gives H2SO4. So first of all, sulfur is balanced. I'll balance oxygen. Oxygen balance करने के लिए मैं यहाँ क्या ऐड कर दूंगी, 2H2O. यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4. यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2. So here I add 2H positive. 2H positive ऐड कर दूंगी and 2 electrons. Clear? दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गई. नाउ मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 5, मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 2. तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस हेयर आई हैव H2O. यहाँ कितने H2O हो जाएंगे, 5 2 जा 10, हेयर 4 2 जा 8. सो 8 यहाँ आ जाएगा, 2H2O प्लस here I have 16H positive, here I have 10H positive. तो 10 यहाँ आ जाएगा, 6H positive gives 2Mn2 positive plus 5H2SO4. Clear? Now if I see the reaction, here Mn1, here Mn2, here also Mn2, sulfur 5, sulfur 5. Now if I talk about oxygen, 4 2 ja 8, 5 2 ja 10, 18, 19, 20, 5 4 ja 20. If I talk about hydrogen, 2 2 ja 4, 4 plus 6 10, here 5 2 ja 10. Reaction is balanced. If I talk about charge, here plus 6 minus 2 plus 4 plus 2. Balanced. And if I want to write the non-ionic equation, it is 2 KMnO4 plus 5 SO2 plus 2 H2O plus 3 H2SO4. I don't write here 6 H2SO4 because 6 H positive ion मुझे 3 H2SO4 देंगे. Then here 2 Mn2 positive. यहाँ पे 2 Mn2 positive है, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 MnSO4. कितना आ जाएगा, 2 MnSO4 plus 5 H2SO4. Clear? Here it is 2 MnSO4 plus 5 H2SO4 plus 5 H2SO4 because यहाँ पे K भी है, तो K कितने हैं यहाँ पे, 2. So I write here K2SO4. K2SO4. Now मेरे पास यहाँ SO4 दोनों साइड आ रहे हैं, so मैं HSO4 यहाँ से क्या करूंगी, डिलीट. क्लियर? यहाँ से रिमूव करूंगी और यहाँ पे कितना ऐड कर दूंगी, 3. क्लियर? यहाँ पे मेरा कितना ऐड हो जाएगा, 3. सो द रिएक्शन इज 2 KMnO4 plus 5 SO2 plus 2 H2O gives 2 MnSO4 plus 3 H2SO4 plus K2SO4. Now if I see the reaction, K मेरे पास कितने है, 2, Mn मेरे पास कितने है, 2, SO4 मेरे पास कितने है, 2 यहाँ 1 यहाँ 3. तो यहाँ पे हमारे पास SO4 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, सल्फर 5 सल्फर 2. यहाँ पे हमारे पास कितने सल्फर हो गए, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 5 minus 3 इट बिकम्स 2. सो सल्फर कितने हो गए, 2 4 5 सल्फर. देन ऑक्सीजन अगर हम काउंट करेंगे तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 18, 19, 20. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 16, 16 plus 4 20.
यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे 4, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस वंस, और जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से ये सारी रिएक्शन विदाउट बुक में देखे लिख लेंगे. सो इन दिस वे this property is highly important for potassium permanganate. So students, that's all for today. This topic is highly important, so go through this topic, go through this video again and again till that आपको concept समझ में नहीं आता है. I'll provide the link of potassium dichromate also, watch that video also, because that video is also highly important, and the most important are the oxidizing properties of potassium dichromate and potassium परमैंगनेट. सो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से कीजिएगा एंड प्रैक्टिस दिस रिएक्शन. अगर आपने रिएक्शंस को याद नहीं करना है, इफ यू डोंट वांट टू लर्न द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिएक्शन बहुत आसानी से आ जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक्स.